Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, I'm back with a new chapter number 7, comparing quantities. So, let's do embark on. So, a ratio is a way of comparing two quantities. For example, in a basket with 18 yellow bananas and 16 red strawberries, the ratio of bananas to strawberries is 18 is to 6, which simplifies 9 is to 8. Ratio help us understand relationship between quantities and can be expressed in simplest form by dividing both terms by their greatest common factor. Understanding ratios lays the foundation for more complex mathematical concepts like proportion and rates. Now we know that the ratio means comparing two quantities. Here is a picture showing a basket of bananas and strawberries which illustrate ratio and percentage as discussed. The basket shows 18 bananas and 16 strawberries. My bad. Basket shows 18 bananas and 16 strawberries. Ratio is 9 is to 8 for bananas to strawberries. So basically बच्चों क्या बोला गया है? If you will see this picture carefully, in this basket you can see there are 18 bananas. Okay, and it is containing 16 strawberries. So आप इसे इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो. This is the sign of proportion or you can say ratio. So 18 is to 16, इसे is to पढ़ा जाता है. 18 is to 16 यानी बनाना का रेशियो स्ट्रॉबेरी के रेशियो से. नाउ यू कैन सी if it is divisible by the greatest common factor then divided. 2 9 से 18, 2 8 is 16, so 9 is to 8 is the simplest form. Okay, now comparing quantities का क्या मतलब है कि एक आपको बनाना की क्वांटिटी दी है, एक स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी दी है. You have counted both of them and now you are comparing one to another, okay, by using the ratio. So that is called comparing quantities. At least two things you want there to compare it. Now we know that ratio means comparing two quantities. Here is a picture showing a basket of bananas and strawberries which illustrate ratio and percentage as discussed, as you have already seen it. Now let's see bachcho recalling ratios and percentages. So when we compare two quantities we use ratios. A ratio gives us a way to express the relationship between two numbers or amounts. Let's consider an example to understand this well. Suppose we have a basket containing 18 bananas and 6 strawberries. Okay, this time we are having 18 bananas and 6 strawberries. So we can compare the number of strawberries to the number of bananas, right, by writing their ratio. For example, we are finding the ratio of strawberries to banana. So number of strawberry is 6 and number of banana are 18. सो आपको बनाना जो दिए हैं वो 18 है और स्ट्रॉबेरीज का है जो 6 है. सो जो रेशियो है बच्चों वो क्या बता रही है? 6 स्ट्रॉबेरीज देयर आर 18 बनाना. सो आप इसे 6/18 के फॉर्म में लिख सकते हो. एंड फर्दर जब आप इसे सॉल्व करते हो यू विल गेट 1/3. एंड नाउ दिस फ्रैक्शन मीन्स द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बनानास. नाउ इन रेशियो टर्म्स दिस इज रिटन एज 1:3. As I told you, this ratio will be written as 1:3. Okay, now this means 1 is strawberry for every 3 bananas. For every 3 bananas there is 1 strawberry. Now you can see ratio of bananas to strawberries. As you can see that this time we are doing the inverse of it. Previously what we did, we find out the ratio of strawberry to banana, but this time we are finding the ratio of bananas to strawberries. So similarly, if you want to compare number of bananas to the number of strawberries, we reverse the ratio. For example, that was 1:3. This time the answer will be 3:1. Ratio of bananas to strawberry, this is banana, this is strawberry, and this indicates there are 3 times as many as banana as strawberries. For every strawberry there is 3 bananas. And converting to percentage, so how will you do this? So we can also use percentages to make the comparison. हम क्या करते हैं? Comparison करने के लिए percentage का use करते हैं. To find out the percentage of strawberry in the basket we calculate total number of fruits कितने हुए? 18 बनाना है, 6 strawberry है, the total fruit will be 24. Okay, now percentage strawberry का कैसे निकालोगे आप? Number of strawberry, total number of fruits multiply by 100. So that will be 25%. Now this means 25% of the fruits in the basket are strawberries. यानी basket में 25% जो fruit है वो strawberry है. वहीं पर बच्चों अगर आपको percentage of banana निकालना होगा, you have to follow the same
step again, since the basket only contain banana and strawberries, the percentage of banana can be calculated by subtracting the percentage of strawberry from 100. As you know that कि कोई भी percentage होता है वो 100 में से निकाला जाता है. अगर 25% स्ट्रॉबेरी का है, सो बचा हुआ कितने का, अगर 25% स्ट्रॉबेरीज का है, तो जो बचा है 100 minus 25, that is 75% is for bananas. क्लियर? इसी तरीके से आपको निकालना है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, example, find the ratio of the speed of a bike 25 km per hour to the speed of a car 75 km per hour. So आपको speed of bike दी है कितना है 25 km per hour, वहीं पर speed of car दिया है 75 km per hour. दोनों का रेशियो निकालने के लिए speed of bike upon speed of car. Now speed of bike is given 25 km per hour and speed of car is given 75 km per hour. It is divisible by 25. 25 ones are 25 and 25 threes are 75. So 1 upon 3, that means ratio is 1:3. Clear? Next देखिए बच्चों एक और example. In a survey 40% of students in a class of 200 said they spend 1 to 2 hours daily studying, while 35% said they study for less than 1 hour. The remaining students said they study for more than 2 hours daily. So you have to find out how many students study for 1 to 2 hour daily. So basically, as you already know, there are 40% students, right? 40%. So to find out how many students this represents, so basically what will we do? You can see that अगर हमें ये पता करना है कि क्लास में जो कि 200 बच्चे कंटेन करते हैं, 200 बच्चे हैं, उसमें 40% 1 से 2 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं डेली. सो 40% हटाओगे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 200. ओके, दिस इज द वे हाउ you will find out the total quantity of the given percentage. So आप क्या करोगे, आप निकालोगे 40% किसका, 200 का. So 40% of 200 अब आपने निकालना सीखा है. So 80 स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं 1 to 2 आवर डेली पढ़ाई में. नेक्स्ट बच्चा पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर मोर देन 2 आवर्स डेली. सो यहाँ पे देखिए, अगर हमें पता है 40% जो है वो 1 to 2 आवर पढ़ रहे हैं, 35% लेस देन 1 आवर पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कितने, 40 + 75, 40 + 35 75, 100 में से माइनस कर, तो जो बचे हुए हैं वो कितना पढ़ते हैं, 2 आवर्स से ज्यादा. सो एज यू कैन सी दैट हियर बच्चों, वी आर टोल्ड दैट 35% लेस देन 1 आवर पढ़ते हैं और 40% 1 to 2 आवर पढ़ते हैं. सो बेसिकली, सो द रिमेनिंग परसेंटेज रिप्रेजेंट दोज हु स्टडी मोर देन 2 आवर विल बी 100 minus 35 plus 40%. So that will be 75. 100 minus 75 you will get 25% ऐसे बच्चे हैं जो more than 2 आवर पढ़ते हैं. Now you can easily find out 25% of 200, जो कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन. बच्चों क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस ऑफ 20 meters to the distance of 200 meters. So again we will do the same. 20 meters upon 200 meters, कितना आएगा बताइए आंसर, 20 upon 200 and answer will be 1 upon 10. So 1:10 is your answer. Okay, so this is how you will do the rest of the questions. Next, convert the following ratios to percentage. So as you can see that here 5:8. Total कितना हो जाएगा, right? So 5 upon 13 into 100%, ये इस 5 का निकलेगा. Next 8 upon 13 into 100, ये दूसरे का निकलेगा. क्लियर हुआ? ऐसे आपको परसेंटेज निकालना है. नाउ नेक्स्ट बच्चों, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई आउट कर सकते हैं. वी हैव सीन सम एग्जांपल्स. इसमें क्या बताया है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 85% बच्चों ने एग्जाम पास किया है. हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास. सो आपको ये पता है कि अगर 85% ने पास किया है तो कितने परसेंट ने नहीं पास किया है, 15%. 15% बच्चे फेल हो गए हैं. नाउ अब आपको क्या निकालना है, 15% of 40, then you will be able to find out the answer. ओके, चलिए ऐसे ही बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई आउट करिएगा. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग डिस्काउंट. डिस्काउंट refers to a reduction given on the marked price, that is MP of an item. Discounts are often used by sellers to encourage buyers to purchase more products or increase sales. The amount of discount can be calculated by subtracting the sale price from the marked price of the product. For example, if you want to find out the discount, how will you do that? To find out the discount बच्चों, कितना marked price
प्राइस है और कितना सेल प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको मार्केट प्राइस में से। वंस द डिस्काउंट अमाउंट इज नोन, द डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू 100। नाउ लेट्स सी बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या करना है, अ लैपटॉप मार्क्ड एट 1200 रुपीज इज सोल्ड फॉर 960। सो एक लैपटॉप है जिसका मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है क्या 1200 रुपीज एंड सोल्ड प्राइस क्या है 960। सो व्हाट इज द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। सो आपको पता है कि मार्क्ड प्राइस 1200 है, सेल प्राइस 960 है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको डिस्काउंट प्राइस मिलता है 240 रुपीज। नाउ डिस्काउंट आपने पता कर लिया, दैट इज रुपीज 240। Now you want to find out the discount percentage। फॉर्मूला हमने जस्ट पढ़ा, डिस्काउंट कितना था 240, मार्क प्राइस कितना है 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 12 से 12 2 से 24, सो 20% आपका क्या है डिस्काउंट है। क्लियर हुआ। सो द डिस्काउंट is 240 rupees and discount percentage is 20%. Now example with discount percentage बच्चों देखते हैं। So if the discount percentage is already known, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पहले से पता है, we can find the sale price using the discount formula. How? So यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको बताया गया है एक जैकेट है जिसका मार्क्ड प्राइस है 1500 रुपीज, कितना 1500 रुपीज मार्क्ड प्राइस। नाउ डिस्काउंट आपको बता दिया कि 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको सेल प्राइस निकालना है। सो बेसिकली जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, यू हैव टू राइट डाउन द थिंग्स दैट इज गिवन। सो यू कैन सी दैट हियर एमपी इज गिवन। एमपी कितना है बच्चों 1500 रुपीज है, और वहीं पर डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट कितना गिवन है 25% एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेल प्राइस। सो आपने पता है कि डिस्काउंट जो है 25% वो किस पे मिलता है मार्क्ड प्राइस पे। सो यू कैन से दैट डिस्काउंट जो मिला है वो अगर मार्क्ड प्राइस पे मिला है, सो 25% ऑफ 1500 आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। सो यहाँ पे डिस्काउंट निकालने के लिए 25% ऑफ 1500 निकालेंगे, सो दैट इज 375 रुपीज। ओके, दिस इज स्टिल द डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट पता है कि रुपीज 375 मिला है। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है कि अगर सेल प्राइस निकालना है तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को घटा दीजिए, सेल प्राइस पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला गिवन था ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस को उधर ले जाइए, डिस्काउंट को उधर ले जाइए, सेल प्राइस का फॉर्मूला बन जाएगा। सो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस आपको पता है 1500, सेल डिस्काउंट हमने अभी निकाला है, दैट इज योर प्राइस, सेल प्राइस ऑफ द जैकेट। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। सो व्हेन यू शॉप एंड गेट अ डिस्काउंट, इट इज हेल्पफुल टू एस्टिमेट द अमाउंट यू विल पे आफ्टर द डिस्काउंट। हियर इज हाउ यू कैन डू इट यूजिंग परसेंटेज एस्टिमेशन। सो बेसिकली आप जब भी शॉप करते हो कोई चीज और डिस्काउंट मिलता है तो काफी आसान हो जाता है अमाउंट को एस्टिमेट करना कि आप डिस्काउंट होने के बाद कितना पे करोगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम एस्टिमेशन करेंगे परसेंटेजेस में। रमेश टोटल बिल एट अ शॉप इज 687 rupees 0.50. Now the shopkeeper gives a discount of 12% and let us estimate how much he has to pay after the discount. So basically this is the amount, okay, this is the bill and shopkeeper give him a discount of 12%. Now you have to know कि आपको कितना अमाउंट पे करना है after getting a discount. So round of total bill आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसका राउंड ऑफ, आपने बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सो एज यू ऑलरेडी नो, अगर हम 100 यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, इसका टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं, 87 है, सो टेंस पे राउंड ऑफ करने पे ये हो जाएगा 690 रुपीज, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर 690 रुपीज आपका बिल आया है और 12% डिस्काउंट मिला है तो आप क्या निकालेंगे 12% ऑफ 690 रुपीज, है ना। सो यहाँ पे हम निकालेंगे कैलकुलेट 10%। ओके, यहाँ पे बच्चे देखिए किया क्या है, ब्रेक डाउन कर दिया हमने। हम ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हो 12% को डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लो
या फिर आप 10% एंड 2% करके अलग निकालो। 10% निकाला 69 रुपीज आया, 2% निकाला सो 13.80 रुपीज आया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ द परसेंटेजेस। सो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 82.80 रुपीज होगा। दस द एस्टिमेटेड अमाउंट इज 82 रुपीज एंड 80 पैसे यू विल पे approximately. So this is the discount. Okay, this is the discount, so just subtract it from this amount. So 690 में से जब आप ये subtract करोगे, this is the amount you have to pay after getting a discount of 12%. Okay, so we will pay around 607 rupees after the discount. Now let's see the next concept बच्चों, सेल टैक्स एंड गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि बच्चों आप जीएसटी भी बोलते हो। सो बच्चों देखिए, सेल टैक्स इज एन एडिशनल चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। From July 1, 2017, the good and service tax replaced the previous system of taxes like VAT and sale tax in India. GST is levied on the supply of goods and services and is added to the total bill amount. अब बच्चों देखिए, जीएसटी एंड सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स एक्चुअली बच्चों जो सेलिंग प्राइस होता है उस पे लगाया जाता है किसी भी आइटम पे। सो दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट यू विल पे टू द सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेलर को पे करते हैं एंड देन वो बाद में गवर्नमेंट को चला जाता है। फ्रॉम जुलाई 1, 2017 सेल जो सेल टैक्स है और जो कि आपका वैट आपने सुना होगा, वैल्यू एडिड टैक्स, उसे रिप्लेस कर दिया है जीएसटी वर्ड ने। सो जीएसटी टैक्स अब लगता है बच्चों सारी चीजों पे। सो नाउ यू कैन सी एग्जांपल फॉर यू बाय अ बुक फॉर ₹520 एंड सेल टैक्स इज 8%। आपने एक बुक ली जिसका प्राइस दिया है 520 और सेल टैक्स दिया है 8%। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? सो बच्चों टोटल अमाउंट आप कितना पे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि जो सेल टैक्स उन्होंने लगाया है वो बुक की प्राइस पे लगाया है। सो 8% ऑफ दिस प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, फाइंड द सेल टैक्स ऑन 520 रुपीज। सो सेल टैक्स कितना दे रखा है? 8% ऑफ 520 रुपीज, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 41 रुपीज एंड 60 पैसे। नाउ टोटल बिल कितना बनेगा? जो अमाउंट आप बुक के लिए पे कर रहे हो उस पे आप टैक्स को ऐड कर दो। सो 561 रुपीज एंड 60 पैसे टोटल अमाउंट होगा जो आप पे करेंगे। सो द टोटल बिल अमाउंट इज 561.60 पैसे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल 5। अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग अ 10% वैट। Now, what was the price of the washing machine before VAT was added? So बच्चों आपको ये बोला गया है कि 15,000 15,000 में एक वॉशिंग मशीन ली गई है जिसमें 10% वेट इंक्लूड है, टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको एड ऑन नहीं करना। सो यू हैव टू टेल द आंसर कि वेट इंक्लूड करने से पहले कितना उसका ओरिजिनल प्राइस था। सो आपको पता है कि अभी हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है जो कि हमें नहीं पता, सो हम उसे एक्स मान सकते हैं। अब हमें पता है कि 10% ऑफ एक्स, ओके, फिर हम 10% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, ओरिजिनल प्राइस हमने क्या माना? एक्स। अब 10% ऑफ एक्स जो हम निकालेंगे बच्चों, जो कि ओरिजिनल प्राइस है, ये क्या होगा? वेट टैक्स। ओके, अब जो टोटल अमाउंट आपने पे करा है 15,000, उसमें ये अमाउंट इंक्लूड था 15,000 प्लस दिस वन। सो यहाँ पे देखिए 15,000, माय बैड, 15,000 अगर मैं कहूं आपने पे करा है, कैसे पे करा था? एक तो ओरिजिनल अमाउंट आपने पे करी थी, उस पे आपने 10% टैक्स लगाया था, किसका? उसी ओरिजिनल अमाउंट का। सो इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी, एक तो ओरिजिनल अमाउंट और 10% जो उस ओरिजिनल अमाउंट पे लगा है, उन दोनों को ऐड करके आपने 15,000 रुपीज दुकानदार को पे करा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। आपने अमाउंट को एक्स माना, ओरिजिनल प्राइस को। अब आपको पता है 10% इज एडेड टू द प्राइस, सो द एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 15,000। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बच्चों, सो ये हो जाएगा 10/100 into x, that will be equal to 0.1x. okay, so this is what it is written over there. आप 0.1 कह लो या 0.10 कह लो। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में अब आपको पता है कि जब आप इसमें x प्लस 0.1 x को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए? सो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 1.1। कितना हो जाएगा? 1.1। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज 1.1 OX कह लो। बच्चों ध्यान रखना, दोनों ही एक चीज है, चाहे आप वैसे ही कह लो, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे लगा ही देती हूँ।
नेक्स्ट देखिए, अब ये डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे 15,000 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, x एज इट इज रहेगा। इसे सॉल्व कीजिए, जब आप इसे सॉल्व करोगे दैट विल बी द अमाउंट यू विल फाइंड आउट। इट इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि आपकी ओरिजिनल प्राइस थी वॉशिंग मशीन की बिफोर वेट, जो कि थी 13,636 एंड 0.36। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, आई होप आप इन्हें ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, हमने बहुत से एग्जाम्पल देख ही लिए हैं। अ टेबल इज मार्क्ड एट 2,000 रुपीज एंड इट इज सोल्ड फॉर 16,000, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। सो यहाँ पे आपको एमपी दिया है मार्क्ड प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस दिया है, डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एमपी कितना है 2,000 माइनस कितने में सेल किया आपने 1,600, सो दैट मीन्स टोटल डिस्काउंट जो मिला है दैट इज 400 रुपीज। सो डिस्काउंट निकल गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सो डिस्काउंट कितना है 400, मार्क्ड प्राइस कितना है 2,000 इंटू 100। सो अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा ना। देखिए ये कट गया, 40% आपको डिस्काउंट मिला है। क्लियर, चले आगे बढ़े। ओके 40 नहीं 20%, माय बैड 20%। ओके 2 कैंसिल आउट करना भूल गए। सो यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट मिला है दैट इज, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, सो दैट इज 20%, माय बैड। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। आपकी एक वॉशिंग मशीन जो है उसका मार्क प्राइस है 15,000, 10% डिस्काउंट मिला है, व्हाट विल बी द सेल प्राइस। ओके, सो आपको क्या करना है, आप 10% ऑफ दिस अमाउंट निकालेंगे, 10% ऑफ 15,000, क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, सो ये आपका आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट निकलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सेल प्राइस निकालना है, तो आप मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए मार्क प्राइस क्या है 15,000, जो भी आएगा उसको माइनस कर देना। तो इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, रिलेट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो देखिए वैट के ऊपर ही है, जैसे यहाँ पे देखिए एक मोबाइल फोन आफ्टर एडिंग 8% सेल टैक्स इतना हुआ, आपको ओरिजिनल प्राइस मानना है, निकालना है। सेम एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था, कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बच्चों ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। आपने टीवी ली, 12% इंक्लूड है, आपको प्राइस पता करना है ओरिजिनल, तो दोनों में आप एक्स मानेंगे ओरिजिनल प्राइस, जैसे हमने इस एग्जाम्पल को किया था। द सेम थिंग is happening in these questions, so you have to first solve the example and then you have to try these questions. Now let's move forward and see the next topic, compound interest. Okay, so when you deposit money in a bank or invest in financial instruments like fixed deposits, you earn interest. Interest is also paid when money is borrowed from financial institutions. While we often talk about simple interest, in many cases compound interest is applied when interest is calculated not just on the principal but also on the accumulated interest over time. So let's explore compound interest with an example. So बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जब बैंक में आप पैसे जमा करते हो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। सो क्योंकि आपने बैंक को पैसे दिए हैं, ऑल्दो आप बैंक में पैसे जमा किए हैं फॉर टू सिक्योर इट, बट स्टिल बैंक क्या करती है, उस पैसे को थोड़े टाइम के लिए यूज कर रही होती है ना, क्योंकि उनके पास वो जमा है। जब आप जाते हो तो आपको पैसे दे देती है। सो इन दैट केस जो आपने अमाउंट बैंक को दिया है उस पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, आपको प्रॉफिट होता है। सो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, एक इंटरेस्ट होता है जब आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, बोरो किया है, सो वहां पे भी इंटरेस्ट लगता है, वहां पे आपको पे करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। आज जो हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल एक ही बार प्रिंसिपल अमाउंट पे लग गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट काउंट हो रहा है एंड देन जो अमाउंट आ रहा है उस पर दोबारा से वो इंटरेस्ट लगता है। क्लियर, नाउ लेट्स सी हियर example, an amount of 15,000 is invested by Reena for 3 years at an interest rate of 10% per annum compounded annually. Find the compound interest and the total amount she received at the एंड ऑफ द ईयर। सो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज PRT, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो आपका आंसर आएगा 1500 रुपीज।
फॉर द फर्स्ट ईयर, 3 साल के लिए लिया है। अब जो अमाउंट होगा 1 साल बाद, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, जो कि 1500 है, जो कि हो जाएगा 16,500। अब जो अमाउंट है बच्चों, जो नेक्स्ट साल, अगले साल सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आई टोल्ड यू कि हर साल जो कंपाउंड अमाउंट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ना सेकेंड ईयर कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 16,500। इंटरेस्ट सेम ही रहने वाला है। एंड यहाँ पे देखिए, जब आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 1,650 फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, नाउ अमाउंट आपको जो 2 साल बाद देना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सो 18,150। नाउ दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ओके, अब 3 साल के लिए दिस इज द लास्ट ईयर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड ईयर द लास्ट वन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो आप क्या करेंगे, 10% ऑन दिस सिंपल इंटरेस्ट, सो 1,850। अब यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, एड ऑन कीजिए, आपका हो जाएगा 19,965। अब बच्चों, दस द टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर विल बी 19,965। so टोटल इंटरेस्ट अर्न, टोटल कितना हुआ 19,965, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कीजिए, दिस इज द इंटरेस्ट जो कि 3 साल में अर्न किया है। ठीक है, सो इस बच्चे ये देखिए, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने यूज किया। बट हैव यू नोटिस, हमने अगर ये 10 साल के लिए होता, 15 साल के लिए होता, तो आप कैसे करते, नहीं कर पाते, इट वॉजंट पॉसिबल, बिकॉज ये मेथड बहुत लंबा हो जाता। सो अब हम क्या करेंगे, यू कैन सी कंपैरिजन विद सिंपल इंटरेस्ट। फॉर कंपैरिजन लेट्स कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ time and principal. Simple interest for 3 year, P into R into T. So P आपका ये रहा R and T, 4,500 rupees. Okay, now the total amount with simple interest would be 15,000 plus 4,500, 19,500 rupees आपका आंसर आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चा, 465 रुपए का आपका इंटरेस्ट जो है डिफरेंस हुआ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। दस विद कंपाउंड इंटरेस्ट Reena earns 465 rupees more than she would with simple interest. So आपने डिफरेंस देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा अर्निंग हो रही है रेदर देन सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years at an interest rate of 6% per annum, compounded annually. Calculate the compound interest and total amount at the end of 2 years. So how will you do that? First we will फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है। सो प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट कितना है बच्चों 6, और टाइम फॉर द 1 year। सो 12,000 इंटू 6% यू विल गेट 720 रुपीज। एंड एड ऑन करने पे जो टोटल अमाउंट आ रहा है प्रिंसिपल में, दैट इज 12,720 रुपीज। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर दिस विल बिकम प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ इंटरेस्ट 6% है, उस पर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 763.20। इसको एड ऑन करोगे तो आपको टोटल अमाउंट ये 13,480 रुपीज .20 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा देन, जो भी आपका अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दीजिए, एंड देन दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years यू हैव टू पे। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बच्चों। आई होप क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम हर ईयर फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी विल गोना डिड्यूस अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, so Anita asked her teacher, is there a simpler way to calculate compound interest? अनीता अपने टीचर से पूछती है क्या हमारे पास कोई सिंपल वे है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का। सो द टीचर रिस्पॉन्डेड यस। So the teacher responded, yes, there is a more efficient method for calculating compound interest. Let's explore how to derive it. Suppose you have a principal amount P on which interest is compounded annually at the rate of R percentage per annum for n years. So that means this is the principal amount, this is the rate of interest, and this is the number of years. Here is how we can develop the formula for amount A. Now remember it, for amount A at the end of n years. Okay, so steps to derive the formula, you can see for the first year, at the end of the first year the interest is calculated based on the initial principal. This is the formula.
फॉर द फर्स्ट ईयर. नाउ टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा बच्चों? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर अपॉन 100. सो नाउ यू कैन सी P कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100. नाउ ईयर 2 में क्या हो जाएगा? जो आपका प्रिंसिपल था वो क्या हो जाएगा? देखिए, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, ये हमें पता है. सो न्यू प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर P2 प्लस A1. इस टाइम पे आप देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बराबर होगा. देखिए दोबारा से, ये जो हमने अमाउंट 1 जो हमने फाइंड आउट करा था, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2 प्लस अमाउंट 1. सो ये आपका फॉर्मूला था. नाउ इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा प्रिंसिपल 2 इंटू आर अपॉन 100. अब बच्चों आपको पता है कि इसकी जगह यहाँ पे ये फॉर्मूला P इंटू जो हमने P2 फाइंड आउट करा था वो आप पुट कर देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100. नाउ टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100. यहाँ पे देखिए पावर कितनी हो गई? 2, क्योंकि सेकंड ईयर है. सो नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा दिस टाइम? 2. ऐसे ही बच्चों जनरल फॉर्मूला फॉर n ईयर्स कितना होगा? जनरल फॉर्मूला फॉर n ईयर्स में यहाँ पे जो आपका 2 है वो n में चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द interest, or you can say amount, by using compound formula. Okay, now you can see, therefore the amount A at the end of the n years can be calculated using a principal amount 1 plus r upon 100 to the power n. Now find the compound interest using CI. Once we know the total amount A, the compound interest can be easily found by subtracting the initial principal from the amount. You can see compound interest निकालने के लिए amount में से principal को minus कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा compound interest का. Now let's see an example बच्चों. Rahul deposit 50,000 rupees in a bank at the annual interest rate of 5% compounded annually. Find the compound interest and the total amount he will pay after 3 years, or you can say he will have, my bad, he will have, because उसने क्या किया है? सबमिट किया है ना, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा. सो राहुल ने 15,000 रुपए बैंक में जमा किए, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% था, तो उसको 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? सो बेसिकली प्रिंसिपल हमें पता है 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ए, अब हम क्या करेंगे? P ब्रैकेट पे 1 प्लस आर 5 अपॉन 100, टाइम है 3. ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए. ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1.05 टू द पावर 3. और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये अमाउंट नंबर मिलेगा. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट यू विल सी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 5,007. दैट इज, सो बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आंसर रिटर्न ओवर देयर. हम क्या करेंगे, मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है. सो यहाँ पे देखिए 5,000 आपका इंटरेस्ट था, राइट. अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1/20 आएगा. 1 प्लस 1/20 टू द पावर कितनी हो जाएगी? 3, राइट. अब यहाँ पे देखिए बच्चों 5,000 है. सो 5,000 इंटू कितना हो जाएगा? 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20. यही तो मतलब है इसका, है ना. अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. 21 का क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम. चलिए 441 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 882. नाउ 1629261. ओके, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलेगा? 9261 इंटू 5. 5 1 5, 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10 13, 1 कैरी, 4 6. ओके, सो 46,305. एंड नाउ यू कैन सी बच्चों मैं एक ही साथ डिवाइड कर दे रही हूँ. ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं. सो 8 5 40. ओके, ये कितना आ गया? 8 5 40. देन कितना अमाउंट उन्होंने जमा किया है? 8 5 40. सो यहाँ पे हमारा 6 गया. 8 7 56. देन अगेन हमारा कितना बचा यहाँ पर? 7. 8 8 64. देन 6. 8 8 64. देन अगेन 1 गया. 8 1 8.
सो हमारा सेम ही आंसर आ रहा है 8 3 24. नाउ यू कैन सी द सेम अमाउंट वी गॉट. सो बेसिकली आपको क्लियर हो रहा है कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया था. सो यही चीज है बच्चों, आपको समझनी है. यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 5788. ओके, जो मैं कह रही थी मिस्टेक है दैट इज दिस वन. ये 5000 है, 15,000 नहीं लिया इन्होंने. ओके, क्वेश्चन में 50,000 गिवन था, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है. जो अमाउंट राहुल ने डिपॉजिट किया है दैट इज 5000. सो हमने 5000 के लेकर कैलकुलेट करा, सो अमाउंट हमारा सही निकला. क्लियर हुआ? सो यही चीज है, आपको ध्यान रखनी है. जरूरी नहीं है कि आप इसी को यूज करो, आप चाहो तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने क्यूब रूट पढ़ा हुआ है, आपको मल्टीप्लीकेशन पता है. नाउ हमारा जो आंसर आया है दिस वन. यहाँ पर टोटल अमाउंट इन्हें पे, टोटल अमाउंट किसको मिलेगा? राहुल को मिलेगा 3 साल बाद. अब राहुल को ये पता है कि टोटल अमाउंट इतना मिलेगा, बट उसे पता करना है कि उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा. सो टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने क्या किया, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करा, तो 788 रुपीज एंड 13 पैसे उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से. ओके, नाउ यहाँ कह सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स राहुल को जो टोटल अमाउंट मिलेगा that is 5788 rupees and 13 paise, and the compound interest will be 788 rupees point 13 paise. Now let's see the next one. So Anita, excited by this, said now I can calculate compound interest easily using the formula. So let's see one more example. Find compound interest on 8,000 rupees for 2 years at the rate of 5% per annum compounded annually. So आपको पता है कि यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P1 plus R upon 100, R कितना है 5% upon 100. नाउ यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड क्या है? नंबर ऑफ इयर्स, इज द अमाउंट आफ्टर इयर्स. नाउ गिवन प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? 8,000. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम दिया है 2 years. नाउ यू कैन सी P ब्रैकेट में 1 plus R 5 upon 100 to the power 2. ठीक है, अब क्या करना है? 8, इसे जब आप सॉल्व करोगे कितना मिलेगा आपको? 1.05. इसका स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, आपने क्या करना है, 8,000 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन. सो हाउ विल यू डू दिस? जस्ट रिमूव द डेसिमल, 40 and 3 is cancelled by this. Now again just calculate it. So ये हो जाएगा 5, 2 5s are 10, 2 4s are 8. Again 5 से कट रहा है, 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 5 2s are 10, 1 गया, 5 2s are 10 and 0 5. Now solve it. So जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 4 2s are 8, 8. So this is basically your answer. So I hope ये clear हुआ आपको. So let's do this again क्योंकि एश्योर करते हैं. So, यहाँ पे बच्चों अमाउंट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 8,814. लेट्स डू इट अगेन. हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं. सो जब इसे हम हटाएंगे, सो 40 हमें मिला. ओके, नाउ solve this one. 30 is cancelled by this 30. You will get 8 into 1025 upon 10. Let's multiply it. 8 5s are 40. ओके, 8 2 16 और 4 कैरी था, सो ये हो जाएगा 20, 8 8 एंड अपॉन 10. सो यहाँ पे देखिए बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया. सो जो हमारा आंसर बच रहा है दैट इज 8820 rupees. Okay, so this is your compound total amount. Okay, after 2 years you will get. So now you can see that here बच्चों, to find out the compound interest आप क्या करेंगे, आप उसमें से 8,000 को माइनस करेंगे and then you will be able to find out your compound interest. Okay, so आपको ये कैलकुलेट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था. 8 5s are 44 कैरी, 8 2s are 16 एंड 16 20, 8 1s are 8, 8 1s are 8. सो बच्चों हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है. अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, 20 होगा. ठीक है, यहाँ पे भी 20 होगा. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 820 रुपए. ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 820
रुपीज। क्लियर हुआ? सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी चेक करते चलना है, ठीक है, अपने आंसर इंश्योर करते चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है बुक में हमेशा सही दिया हो, आपका आंसर भी करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन की गलती थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 15,000 इन द ईयर ऑफ 2010, इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2014। सो देखिए बच्चों 2010 से 2014 कितना ईयर डिफरेंस हुआ? 4। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस हुआ वो 4 साल का। प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 होगा, क्योंकि 2010 में जो पॉपुलेशन थी दैट इज 15,000, और 4% यानी 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सो पुटिंग दीज वैल्यूज बच्चे इन द फॉर्मूला, यू कैन सी दैट हियर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 15,000 ये कितना हो जाएगा? 0.04, 1 प्लस, क्योंकि इसे यहीं पे सॉल्व कर दिया तो 0.04 टू द पावर 4। नाउ वी विल सॉल्व इट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू ली हमने। अब जब आप इसे 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर अमाउंट, ओके, अमाउंट, क्योंकि हमें पता है इसमें अमाउंट ही मिलेगा। अब पॉपुलेशन को 2014 में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है पॉइंट पे पॉपुलेशन नहीं होती, सो आप क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने पे आपका जो आंसर आया है वो आया है 17,548। सो आप कह सकते हो 15,000 से जो पॉपुलेशन हो गई है वो एट द एंड ऑफ द 2014 वो हो गई है 17,548। नाउ लेट्स सी बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सो द यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ अमाउंट को सिर्फ मनी में हम इसे यूज कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 at the rate of 5% per annum, find the population in 2001। so आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन पता करनी है। so आपको पता है कि फाइनल पॉपुलेशन 54,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 साल के लिए आपको फाइंड आउट करना है, 2 साल का अंतर है ना। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। जब हम डिक्रीज, हम पीछे की तरफ जाते हैं, अभी हम आगे की तरफ फाइंड आउट कर रहे थे, जब पीछे की तरफ जाते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, वैल्यू को जब हमने पुट करा, सो आर हमें पता है 5% है, सो जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1.05। 1.05 साथ में बच्चों हमने क्या करा है यहाँ पे, जब इसे कैलकुलेट करा तो 49,000 दैट वाज अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2001, जो कि है 2 साल पहले। सो देखिए 5 साल मतलब 2 साल में 5,000 पॉपुलेशन बढ़ गई। नेक्स्ट है बच्चों पॉपुलेशन इन 2001 is equal to 49,000। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नंबर ऑफ इयर्स 2005 माइनस 2003 दैट विल बी 2 इयर्स। अब अगेन बच्चों यहाँ पे देखिए क्या पूछा था सेकंड में, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे भी 2 साल का अंतर है। अब बच्चों यहाँ पे अंतर देखिए, पहले क्वेश्चन में था पहले का, हम पिछला जा रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आगे के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। सो करंट पॉपुलेशन कितनी है 54,000 इन 2003। सो वी आर टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ 2003। सो 2 साल का अंतर है, करंट पॉपुलेशन ये रही। सो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। 54,000 ये कितना हो जाएगा 1.05, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। सो पॉपुलेशन इन 2005 59,500 पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। सो एग्जांपल देखिए, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया माय बैड bacteria initially 5,06,000, okay, and increased at the rate of 2.5% per hour, find the total count of bacteria at the end of 2 hours। so बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमें प्रिंसिपल पता है कि बैक्टीरिया इनिशियली इतना था, काउंट ऑफ बैक्टीरिया। नाउ जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ग्रोथ का वो 2.5% है, नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास सिर्फ 2 है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर 2। नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे दैट विल बी 1.025। नाउ बच्चों आपको क्या करना है, जब इसे सॉल्व करोगे सो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, जो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा दैट इज 5,31,000 विल बी द काउंट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द बैक्टीरिया।
ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ये आपको पता चल गया कि काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है, इन एग्जांपल्स को रेफरेंस लेना है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। एक स्कूटर लिया गया था बच्चों, कौन से प्राइस पे, 42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है बच्चों। सो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो आपको प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और आपको टाइम भी पता है 1 साल का। सो आपको जब पता है कि डेप्रिशिएट हो रही है, सो ऑब्वियसली यू विल यूज माइनस नॉट प्लस। ओके, सो यहाँ पे माइनस आएगा। जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, ईयर है 1, सो वैल्यू उसका मैटर नहीं करता। 42,000 इंटू 0.92 और जब आपसे सॉल्व करोगे तो 38,640 विल बी द प्राइस आफ्टर 1 ईयर अगर 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेप्रिशिएट होता है 1 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ट्राई आउट कर सकते हैं जो हमने अभी जस्ट एक देखा था। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी दिया हुआ है 25,000 इन ईयर 2007। इट इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2015। कितना अंतर है बच्चों दोनों में, 5 साल का। सो नंबर ऑफ ईयर्स पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 2015। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ 30,000, यानी प्रिंसिपल हमें पता है। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 8% and find the value of the TV after 1 year. So आपको 1 साल बाद रिडक्शन R upon 100 into P. Now रिडक्शन R 8 है upon 100 P कितना है 30,000. This is also the another formula. Now यहाँ पे देखिए रिडक्शन कितना हो जाएगा 2400 रुपीज रिडक्शन होगा। So आप क्या करेंगे इसमें से 20, चाहे आप प्रीवियस वाला मेथड यूज कर लें या ये वाला, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। So कैलकुलेट कीजिए आफ्टर 1 ईयर। आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल then minus reduction. So principal कितना था 30,000, reduction है 2400, so final value 27,600. Alternatively जो हमने देखा था कि हम वही सेम फॉर्मूला बट यहाँ पे माइनस का साइन यूज करके कर सकते हैं, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। आई टोल्ड यू कि हम दोनों मेथड में से कोई सा यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है आफ्टर 1 ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है 5% से, आपको अमाउंट पता करना है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए बच्चों, सेम वही चीजें क्वेश्चन आपको दी गई है। एक आपको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, वो कितने ये प्रिंसिपल आपको दिया गया है, आपको टाइम बता दिया गया है, एन की वैल्यू कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कंपाउंडेड एनुअली, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस कर दीजिएगा प्रिंसिपल को। सेम बच्चों इसे ही क्वेश्चंस आपको ट्राई आउट करने हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अगर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है बैक्टीरिया वाला, जो मैंने कहा था आपको 2.5% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स आपको बताना है इनिशियल काउंट, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन जो हमने देखे थे, साथ ही बच्चों यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कीजिए, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू डू प्रैक्टिस। आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।